میزبان ہینا اسلم حاضر ہے 7 ورلڈ نیوز پر آج ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر کراچی کے مسائل کی بات کی جائے تو کون سا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے، یہ طے کرنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ ایک طرف بجلی، گیس، پانی کا بڑھتا ہوا پرابلم تو دوسری طرف بڑھتی ہوئی وارداتوں نے کراچی کے شہریوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ آخر ہمارے پولیس آفیسر اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر کیوں آ رہے ہیں؟ ہماری حکومت کی بھی کوئی بہتر کارکردگی نظر نہیں آ رہی۔ انہی وجوہات کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر سمیر قریشی۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ جی سر، آپ کے نظر میں کراچی کی موجودہ صورتحال میں جو مسائل ہیں ان کا قصوروار کون ہے؟ دیکھیں، قصوروار کی بات کی جائے تو جرائم پیشہ عناصر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں عادی جرائم پیشہ جن کا کام ہی یہی ہے، روٹی روزگار ہی یہی ہے، اور ایک دوسری قسم وہ ہے جو کہ مجبوری کے اندر وارداتیں کرتی ہے۔ جرائم پیشہ جو عادی جرائم پیشہ ہوتے ہیں ان کی وہ کوئی 15، 12، 14 وارداتوں کے بعد پکڑے جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑے عادی ہوتے ہیں، اور جو یہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں جو مجبوری کے اندر نکلتے ہیں وہ پہلی یا دوسری واردات کے بعد ہی پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ تجربہ نہیں ہوتا۔ تو ذمہ دار جو ہے یہ دیکھیں، دوسرا طبقہ جو ہے جو کہ مجبور، جن کو آپ ڈکیت کہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ ہے مہنگائی، بے روزگاری۔ کہیں نوکری کر رہے تھے، کورونا آ گیا، کورونا کے اندر دیکھیں کووڈ کے اندر کتنے لوگ بے روزگار ہوئے، اور لوگوں کے پاس نوکری دینے کے لیے نہیں ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ اپنی ملیں اور فیکٹریاں بند کر کے جا رہے ہیں، تو ان کے پاس صرف یہی حل رہ گیا اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے کہ وہ مزدوری، کوئی دے گا تو مزدوری کریں گے وہ۔ تو وہ اب جو ہے وہ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ چوری ڈکیتیوں میں ملوث ہو گئے۔ اور دوسرے جو جرائم پیشہ عادی جرائم پیشہ ہے ان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ چاہے ملیں چلتی رہے، چاہے کراچی کے حالات اچھے بھی ہو جائیں، انہوں نے وارداتیں کرنی اور وارداتیں کرتے ہی رہیں گے۔ اچھا، تو یعنی اگر دیکھا جائے تو مہنگائی سب سے بڑا سبب ہے اس کرائم، مطلب بڑھتے ہوئے کرائم کا؟ دیکھیں، مہنگائی، بے روزگاری سب سے بڑا وہ ہے۔ اس وقت اگر آپ کہیں کہ ایک شخص کی تنخواہ 35,000 یا 30,000 ہے، وہ بھی اس وقت گزارا نہیں کر سکتا۔ بجلی کے بل ہی آپ کے 15,000 کے آ جاتے ہیں، راشن کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے، دالیں کتنی مہنگی ہوئی ہیں، تو اس وقت بہت سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اچھا، جیسے ہمارے انٹیلیجنٹ ایجنسیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، پولیس ایجنسی ہماری، تو یہ بھی اس میں بڑھتی ہوئی کرپشن، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی بھی کیا مہنگائی ہے وجہ، یا؟ دیکھیں، کرپشن کی اگر بات کریں تو یہ کرپشن تو چلتی رہتی ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے، اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ماضی سے لے کے کوئی حکومت بھی آئی ہے ایسی نہیں آئی جو کرپشن نہ ہو۔ جو حکومت بھی آئی ہے اس نے رونا رویا ہے کہ خزانہ خالی پڑا ہوا ہے۔ خزانہ خالی کیسے ہوا؟ جب سارے ٹیکسز آپ وصول کر رہے ہیں، ساری چیزیں آپ لے رہے ہیں، اور آپ موٹر سائیکل تک کھڑی کر رہے ہیں کہیں پہ یا گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، آپ اس کی بھی پارکنگ کی فیس دے رہے ہیں، تو خزانہ کیسے خالی ہوا؟ لوگ اپنے بجلی کے بل مسلسل بھرے جا رہے ہیں، ایکسائز جو گاڑیوں کے ٹیکس ہیں وہ دے رہے ہیں، جو ایف بی آر کو ٹیکسز دے رہے ہیں۔ تو بات یہ، کرپشن صرف پولیس کے محکمے میں نہیں ہے، پولیس کا محکمہ تو پینٹ ہے، یعنی کہ بہت چھوٹا جو ہے وہ کرپشن ہے یہاں پر۔ اگر کرپشن کے اندر جائیں تو کسٹم میں سے بڑی کرپشن ہے، یعنی لاکھوں روپے روز کی کرپشن ہے کسٹم کے اندر اگر آپ چلے جائیں۔ ایف بی آر کے اندر، انلینڈ ریونیو میں دیکھیں تو بڑی کرپشن ہے۔ تو اس طریقے سے دیگر اداروں میں بھی بڑی کرپشن ہے، اب تو انتظامی سیٹوں پہ بھی بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ پولیس تو بہت چھوٹا محکمہ ہے اس معاملے میں۔ اچھا، اگر پولیس آفیسر کی جو حکومت کے ساتھ تعاون ہے تو آپ کے خیال ہے وہ کون سا تعاون ہے جو حکومت پولیس ادارے کے ساتھ نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں، پولیس تو حکومت کے ماتحت ہے، اس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا، ٹھیک ہے۔ سندھ حکومت کا کام ہے ان کے وسائل پورے کرنا، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت سندھ پولیس کے ساتھ ہے، جو کہ آج سے 26 سال ہو گئے مجھے صحافت میں، جب میں نیا صحافت میں آیا تھا، پولیس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ تھا نفری نہیں ہے اور وسائل کم ہے۔ آج 26 سال گزر گئے، نفری نہیں ہے اور وسائل کم ہے۔
वहीं फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब कुछ वसाइल का इस्तेमाल शुरू किया, जैसे अंदरून सिंध जो कच्चे के डाकुओं के लिए अबाबिल 5 का जो ड्रोन है वो उन्होंने खरीदने का, जो डाकुओं से ड्रोन के जरिए मुकाबला किया जाएगा या खरीदने का फैसला किया। दरमियान में गाड़ियां खरीदी, मोबाइलें खरीदी, लेकिन पुलिस की मोबाइल भी अगर आप देखें तो कितनी खड़ी हुई है वहाँ। अगर आप चले जाएं इनके हेडक्वार्टर्स में तो यूँ खड़ी हुई है, पत्थरों पर खड़ी है। भाई उन्हें काम कराएं, मेंटेन करें ना। ये एमपीओ जो है वो आप थानों की सतह पे रखते हैं, थाने की मोबाइल दे दें, वही मेंटेन कराए, वही सही कराए, वही सारी चीजें। आप कहाँ, आप तो पेट्रोल बंद कर देते हैं। उनका सीपीडी इतना हसास इदारा है, उसका पेट्रोल बंद किया हुआ आपने, पेट्रोल बंद कर देते हैं। पेट्रोल जब नहीं होगा तो क्या गश्त करेंगे, क्या करेंगे। थानों के अंदर सैंक्शन नफरी नहीं है। एक थाना है, मिसाल के तौर पे एक रिजविया थाना है, उसमें 100 की नफरी है, लेकिन इस वक्त रिजविया थाने के अंदर अगर पूरी चेक की जाए तो 35 की नफरी होगी जो कि सुबह शाम में ड्यूटी कर रही होगी। क्या आप स्ट्रीट क्राइम को रोकेंगे इस तरीके से? नई नई फोर्सेस बना दी आपने, शाहीन फोर्स बना दी, ठीक है। शाहीन फोर्स, अब एक लाहौर की डॉल्फिन फोर्स को ले लें, उसका एसपी अलग है, उसकी तरबियत अलग हुई है, उसके सारे मामला अलग। अब लाहौर की डॉल्फिन फोर्स की एक तरबियत अलग है और स्ट्रीट क्राइम को काबू करने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। हमारे यहाँ शाहीन फोर्स में वही एहलकार है, हेडक्वार्टर से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, इनका एसपी है, ऊपर अंडर में भी उन्हीं के है। तो इस तरह तो माजी के अंदर एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्सेस बनी, मुहाफिज फोर्स बनी, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस बन गई, लेकिन उन्होंने फोर्सेस ने बजाय इसके कि वो जराइम पे काबू पाते, वो सब करप्शन का शिकार हो गई। अब शाहीन फोर्स से 2-4 केस इन्होंने अच्छे भी किए हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होगी। जब तक, मेरा वही कहना है, थानों को सैंक्शन नफरी दें। जितनी नफरी थानों को फराहम करेंगे, आपके स्ट्रीट क्राइम का शरह जो है बिल्कुल नीचे आ जाएगी। और एक बात मैं और बताऊं कि पुलिस में नित नए तजुर्बे न करें। अब आप कभी शाहीन फोर्स बना दी, कभी पुलिस के लिए ये कर दिया, कभी पुलिस को सैंक्शन नफरी दें, तजुर्बात न करें। अब तजुर्बात के मुताबिक नहीं हो सकती आपकी सिंध पुलिस। अच्छा, बात की जाए तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। टैक्स के सामने भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला ही कराची है, तो करप्शन का रेशो भी कराची में सबसे ज्यादा है। तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, कंट्रोल करप्शन को तो आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, मुझे ये बताएं। आप कैसे कंट्रोल करेंगे आप करप्शन? करप्शन इस वक्त जो है, देखिए पुलिस को पैसा वही देता है कि 2 नंबर आदमी, ठीक है। शरीफ आदमी तो कोई इक्का दुक्का ही निकल आता है ना, जिसे पकड़ लिया रास्ते में, 50-100 रुपए ले लिए या 500 रुपए ले लिए। मैंने आपको यही बोला, आप पुलिस की करप्शन की बात कर रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा करप्शन मिलेगी कस्टम में मिलेगी, दीगर इंतजामियों की मिलेगी, या डीसीज बैठे ये बैठे, करप्शन इस लेवल पे मिलेगी आपको। ये पुलिस तो एक छोटा सा महकमा है, इसकी करप्शन इतनी सी हिसाब के अंदर है। हाँ, अफसरान है जो फीडिंग फंड्स खाते हैं, ये खाते हैं, वो सारी चीजें हैं, कोई सिगरेट फंड होता है वो खाते हैं, लेकिन ये पुलिस की करप्शन बहुत कम है, दीगर इदारों की करप्शन बहुत ज्यादा है। तो आपका ख्याल है कि दीगर इदारों में, चले ठीक है आपने ये बताया, तो आप तालीमी इदारों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो तालीमी इदारों के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो करप्शन की सतह नहीं है, उन पे कैसे काम किया? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पुलिस तो बहुत छोटा है। दीगर इदारों में करप्शन देखें ना, तालीमी इदारों में देखें, किताबें नई नई बच्चों के लिए भेज रहे हैं, वो किताबें वो कबाड़ियों को बेच रहे हैं। इंटीरियर सिंध में हाल तो जाके देखें, सरदार साहब वजीर तालीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन निचला अमला, बात यह है कि निचला अमला आपके साथ ताउन करे। देखिए, तालीम के बारे में मैं इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ इस महकमे के बारे में, लेकिन ये चीजें जो नजर आ रही है, जो चीज उठ रही है, तो इस तालीम के महकमे के अंदर भी रोज टीचर्स एहतजाज कर रहे होते हैं। देखिए, आप कभी किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, तो कभी किसी को आप तनख्वाहें नहीं दे रहे, किस तरीके से, और टीचर्स को फिर अलग डंडे मारे जा रहे, पुलिस उन्हें डंडे मार के बंद करती है। असातिज़ा एक वो उस्ताद की क्या अहमियत होती है, उन्हें डंडे मार के बंद कर दिया जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें कि कराची के साथ सौतेले सलूक की, तो इसका कसूरवार आपकी नजर में कौन है? कौन से पार्टी को ज्यादा? देखिए, पार्टी को नहीं, विफाकी हुकूमत को जिम्मेदारी देंगे हम यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, देते हैं, जो हमारा हक है वो हमें विफाकी हुकूमत को चाहिए कि हमारा हक हमें दे। लेकिन बात ये, वो हक हमें अगर देती भी है तो वो किस पे रिलीफ किसको मिले? आवाम को देना रिलीफ, आवाम को रिलीफ ही नहीं मिलता। अब वो किसका है कसूर, किसका है, कौन बैठा है? अब भुगते में जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, आप भुगते हैं नहीं। तो यानी आपके कहने का मकसद है कि पुलिस अफसरान के मसाइलों को सॉल्व किया जाए तो ऑटोमेटिकली स्टेट क्राइम हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे।
देखें मोटर वे बनी थी जिस वक्त, जी मोटर वे जिस वक्त बनी थी तो मोटर वे के अंदर तमाम जो वन स्टेप प्रमोशन दे के और तनख्वाहें डबल करके ले जाए गए। आज मोटर वे पे आपको करप्शन नहीं मिलेगी। अच्छा मोटर वे के ऊपर जज भी है तो उसका भी चालान किया जा रहा है अच्छा जो वायलेशन करता है। तो इस तरीके से अगर पुलिस वालों की, आपने 10 दफा कहा है उनकी तनख्वाहें पंजाब के बराबर कर रहे हैं। ओके पंजाब के बराबर तो दूर की बात है तनख्वाहें करना। आप प्रमोशंस का हिसाब केपीके के जो 2004 के भर्ती है वो आज डीएसपी हो गए, ठीक है। पंजाब में 2002 के जो 90 के बैच वाले एसपी हो गए, हमारे यहाँ 90 का बैच अब 18 साल बाद जाके प्रमोशन लेके डीएसपी हुआ है। 2004 वाले को 18 साल गुजर गए, वो एक ही रैंक पे एएसआई पे ही बैठे हैं और वहां दीगर जगह पे जाए। आप इंसाफ नहीं करेंगे तो कोई, आप इंसाफ करें पुलिस के साथ, आप प्रमोशंस दें, न कि डायरेक्ट भर्तियां ऊपर से करें, प्रमोशंस दें, प्रमोशन उनका हक है, उन्हें दें आप। तो जब तमाम चीजें ना देखें हुकूक मिलना शुरू होते हैं ना तो फिर तवज्जो भी दी जाती है। आप पुलिस वालों को हुकूक की वो सोच रहे इतनी तनख्वाह चलो ठीक है इतनी बाहर से बना लेंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन जब तक आप उनके ऊपर ध्यान दें, सजल बात है, अच्छे से अच्छे अफसर पड़े हुए हैं, उन्हें आपने हेडक्वार्टर में रखा हुआ है और जो ऐसे ही अफसरान है उन्हें आप रोडों पे लेके आए, स्ट्रीट क्रैम तो बढ़ेगा, जिन्हें कोई तजुर्बा ही नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसा नोट कमाने का तजुर्बा है, इसके अलावा कोई तजुर्बा नहीं। अच्छा तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तरफ करप्शन, एक तरफ गवर्नमेंट इदारों के साथ मतलब पुलिस इदारों के साथ नाइंसाफियां हुकूमत की तरफ से, और एक तरफ ये पार्टियों का भी तो किरदार होता है किसी हुकूमत को गिराने के लिए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सियासी माहौल जो है ना वो कभी गर्म रहता है कभी ठंडा रहता है, सियासी माहौल यानी आपका चलता कहना है। है सियासी से कोई वो सियासी पुलिस पॉलिटिसाइज है, ओके, सियासी माहौल तो चलता रहता है। लेकिन आप इधर देखें ना, पुलिस को आप इस्तेमाल करते हैं, आजम स्वाति में मुकदमा बना दिए, 17 मुकदमा, यही पुलिस थी ना जो बना दी थी। जी तो आखिर ऊपर से किसी ने हिदायत दी होगी ना कि बनाए। जी अगर पुलिस सियासी नहीं होती, पुलिस बोलते भाई हम न्यूट्रल हैं, तो मुकदमे नहीं कायम होते, जी ठीक है। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे बना दिए, जी पुलिस न्यूट्रल होती, नहीं होते कायम। सही आप के इदारे जो हैं, पुलिस महकमा पुलिस है, वो इतना आप के मुझे बताएं, शायद मेरे ख्याल में एक एसएसपी है जो आईजी की मर्जी से लगा हुआ है, जो कि एसएसपी दादू है। इसके अलावा कोई एसएसपी आईजी की मर्जी से लगा ही नहीं हुआ। तो जो आईजी अपना एक एसएसपी तैनात न कर सके और सिर्फ हुकूमत की सिफारिशों पे और बासद एसएसपी को तैनात किया जाएगा, तो क्या रेट होगी? मैं तो नहीं समझता हूँ कि ऊपर से नीचे तक रेट होगी। अगर कोई अहकाम जारी भी किए जाएंगे, वो इतना बासद है कि उसने अहकाम अगर बजा लाए उस पर अहकाम के ऊपर, तो वो बड़ी बात है कि वो कर रहा है, सुन रहा है आपकी, वरना कौन सुनता है। आप थैंक यू सो मच समीर कुरैशी, आपने स्ट्रीट क्राइम के ऊपर इंतहाई अच्छे जवाब दिए और उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत स्पेशली कराची में होने वाले मसाइल के ऊपर तवज्जो फरमाए और कराची में रहने वाले शहरियों को अमन बख्शे। अपने प्रोग्राम को मैं ख़त्म करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।